کہانی کی شروعات افغانستان سے ہوتی ہے اور ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہوہ پی رہا تھا۔ اس کا نام عامر ہے۔ اس کے بعد وہ سیدھا اپنے گھر میں جاتا ہے جہاں گھر کے پیچھے کی طرف اس نے کچھ پنجرے رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کہ ان پنجروں کو کھولو، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے ان پنجروں میں کسی جانور کو نہیں رکھا ہوا بلکہ امریکہ کے سولجرز کو قید کر رکھا تھا، جن میں سے ایک لیڈی ہے۔ اس کا نام جیک ہے۔ اس کے بعد عامر اونچی آواز میں سب کو کہتا ہے کہ مہینے میں ایک بار ہم ایک امریکن سولجر کو پتھر مار مار کر اس کی جان لیتے ہیں اور آج دوسرے سولجر کو مارا جائے گا۔ اس کے بعد وہ جیک کو دیکھتا ہے اور اسے گھسیٹ کر باہر روڈ کے درمیان میں لے جاتا ہے۔ وہاں سویلینز کے ساتھ یہ امریکن سولجرز کو بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ سب کے ہاتھ میں ایک ایک پتھر پکڑانا شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اس کے ساتھی ایک امریکن سولجر کو پتھر پکڑاتا ہے، یہ کہتے ہوئے تم اس پتھر کو اپنے ساتھی کو مار کے اس کی جان لوگے۔ وہ سولجر اس کو بار بار منع کرتا رہتا ہے اور عامر غصے میں وہاں کھڑے ایک سویلین پر گولی چلا دیتا ہے۔ اب سولجر ڈر جاتا ہے اور اس کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی، اس لیے وہ پتھر کو اٹھا کر جیک کے سر پر زور سے مار دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر موجود ہر کوئی جیک کو پتھروں سے مارنے لگتا ہے۔ جیک کے زخمی ہونے کی وجہ سے اب حالت بہت بگڑ گئی ہے، لیکن اچانک سے وہاں 2 ہیلی کاپٹرز آ جاتے ہیں اور ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ہیلی کاپٹر سے امریکن سولجرز اترتے ہیں اور وہ جلدی سے جیک کو اٹھا کر ہیلی کاپٹر میں لے جاتے ہیں اور دوسرے عامر کے لوگوں کو مارنے لگتے ہیں۔ اس طرح یہاں بہت لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی عامر یہ سب دیکھتا ہے تو وہ دوسرے ہیلی کاپٹر پر گرنیڈ گرا دیتا ہے، جس سے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ اب وہاں صرف ایک ہی ہیلی کاپٹر ہے جس میں باقی سولجرز کو لے کر وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی دوران وہاں عامر جیک کے ساتھیوں کو جو وہاں رہ گئے تھے گولیاں مار کر جان سے مار دیتا ہے۔ اب یہ سب جیک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ زور زور سے چلانے لگی۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ اب جیک بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، لیکن ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ جب سے وہ افغانستان سے بچ کر یہاں آئی ہے، یہ اسی وقت سے اپنے گھر نہیں لوٹی۔ یہ اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے ساتھ ساتھ فائٹنگ کی بہت سخت ٹریننگ لے رہی ہوتی ہے تاکہ وہ بہت سٹرونگ ہو جائے۔ اس کے بعد افغانستان میں ایک اسکول کو دکھایا جاتا ہے جہاں کچھ اسٹوڈنٹس بات کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کا نام بیڈیا ہے جو افغانستان کے ایجوکیشن منسٹر کی بیٹی ہے۔ ابھی وہ اسٹوڈنٹس باتیں ہی کر رہی تھیں کہ اچانک سے باہر گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب انہوں نے کھڑکی سے دیکھا تو وہاں بہت سے ٹیررسٹ کی گاڑیاں تھیں اور ان سب نے فائرنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ ہر جگہ افراتفری پھیل گئی۔ اب ان ٹیررسٹ نے تمام اسکول کی لڑکیوں کو بندی بنا لیا تھا۔ بیڈیا نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمیں چھت کی طرف بھاگنا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ وہاں ہم سیف رہیں گے۔ اب ان دوستوں کا گروپ جلدی سے چھت پر جا کر چھپ جاتا ہے۔ پھر یہاں سے دکھتا ہے کہ ان ٹیررسٹ کا لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ عامر ہی تھا۔ اب وہ بیڈیا کو ہر جگہ ڈھونڈنے کا بولتا ہے۔ پھر وہ ایک ٹیچر سے پوچھتا ہے، لیکن ٹیچر کہتی ہے کہ بیڈیا تو آج اسکول ہی نہیں آئی۔ اب عامر یہ تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ ٹیچر اسے جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ یہ سن کر سیدھا اس کے سر پر گولی مار دیتا ہے اور اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جلدی سے بیڈیا کو ڈھونڈو۔ اب بیڈیا نے سب کو چھت سے دیکھ لیا تھا اور اسے اب یقین ہے کہ یہ لوگ جلد ہی یہاں پہنچ جائیں گے، اس لیے وہ اپنی ساتھیوں سے کہتی ہے کہ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں بھاگنا چاہیے۔ بھاگنے کے لیے وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں بیڈیا کی ٹکر ٹیررسٹ سے ہو جاتی ہے، جس کے نیچے گرنے سے اس کی گن ایک طرف گر گئی تھی۔ بیڈیا گن کو فوراً اٹھا کر اس ٹیررسٹ کو بولتی ہے آگے مت آنا۔ جب وہ رکتا نہیں تو بیڈیا اسے گولی مار دیتی ہے۔ جیسے ہی سب ٹیررسٹ نے گولی چلنے کی آواز سنی تو وہ اندر کی طرف بھاگے۔ اب بیڈیا نے ایک اور ٹیررسٹ پر گولی چلا دی تھی، لیکن اب عامر بیڈیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے شانت رہو، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، اس لیے گن پھینک دو۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ بیڈیا نے عامر پر بھی گولی چلائی، لیکن بدقسمتی سے اب گن میں کوئی بلٹ نہیں تھی۔ وقت گوائے بغیر بیڈیا اپنی ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ چھت کی طرف بھاگتی ہے اور آخر عامر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب عامر بیڈیا کی دوستوں کے پاس بڑھا تو بیڈیا نے ان کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اس نے بیڈیا کو زمین پر دھکا دے کر بولا کہ تم ہیرو بننا چاہتی ہو؟ ہاں، اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں تمہاری دوستوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 لڑکیوں کو اٹھایا اور بلڈنگ سے نیچے گرا دیا، جو فوراً گرتے ہی مر گئیں۔ اس کے بعد وہ ان سب کو بندی بنا کر اپنے ٹھکانے پر لے آیا۔ اب بیڈیا کے ساتھ دوسری لڑکیاں بھی گورنمنٹ آفیسرز کی بیٹیاں تھیں۔
इसी लिए आमिर एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिससे वो हर फैमिली से $10 मिलियन की डिमांड करता है और कहता है कि मैं ये पैसे मिलने के बाद इन लड़कियों को छोड़ दूंगा। अब यहाँ बेडिया की माँ को दिखाया जाता है जो दुख में रोने लगी थी। अब सीन दोबारा अमेरिका में शिफ्ट हुआ जहाँ जेक अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रही है। वो बहुत बड़ी फाइटर बन चुकी है। फिर एक आदमी ट्रेविस जेक के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है, बस अब तैयार हो जाओ। मेरी टीम अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर है। वहाँ एक स्कूल है जहाँ पर टेररिस्ट ने हमला करके बहुत सारी बच्चियों को बंदी बना लिया है। वो सारी लड़कियाँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बेटियाँ हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी टीम का हिस्सा बन जाओ। शुरू में तो जेक मना कर देती है क्योंकि अफगानिस्तान से आने के बाद वो अभी भी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली थी। इसके बाद ट्रेविस जेक को आमिर की वीडियो दिखाता है और बताता है कि यही है वो टेररिस्ट जिसने इन तमाम लड़कियों को कैद कर रखा है। जैसे ही जेक ने आमिर को वीडियो में देखा तो गुस्से से भर गई और उसने ट्रेविस से कहा, मैं इस मिशन के लिए तैयार हूँ। अब वो सब तैयारी करने के बाद पाकिस्तान चली गई और एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद इसे एक कैब ड्राइवर अब्बास मिला और उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। अब जेक होटल पहुँच गई है और वहाँ ट्रेविस की सारी टीम मेंबर से मिलती है। अब इस टीम में जेक एक सबसे ताकतवर फाइटर और खतरनाक लड़की है। अब वो ट्रेविस से मिलने जाती है जो बताता है कि हमें अफगानिस्तान में जितनी जल्दी हो सके पहुंचना है। हम मेडिसिन के ट्रक के जरिए वहां जाएंगे ताकि हम पर कोई शक न करे। ये बात ही कर रहे थे कि बेडिया की मदर वहां आ जाती है और जेक को कहती है कि मैं तुम्हें अफगानिस्तान भेज दूंगी, बस मुझे अपनी बेटी जिंदा वापस चाहिए। जेक अब जाने के लिए तैयार है और जाने से पहले वो साइबर कैफे जाती है और अफगानिस्तान में अपनी एक दोस्त अवीना को कॉल करती है जो कि तालिबान का हिस्सा है। जेक ने इसकी जान बचाई थी। जेक को अवीना के जरिए ही पता चलता है कि आमिर ने लड़कियों को वहाँ बंदी बनाया हुआ है और खुद भी वहीं है और अवीना सारी इन्फॉर्मेशन इसको देती रहती है। अगली सुबह जेक इस ट्रक में बैठ जाती है जिसमें अब्बास का भाई था। अब ये सब लोग बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं जहाँ सारे अफगान पुलिस ऑफिसर इनको चेक करने के लिए थे। ट्रक में मेडिसिन के कार्टन से अब इन ऑफिसर्स को यकीन नहीं आता, इसलिए वो कार्टन्स खोल खोल कर देखने लगते हैं और मेडिसिन को बाहर गिराने लगते हैं। अब जेक और ट्रेविस खौफ में हैं क्योंकि इन्होंने सारे वेपन्स ट्रक में ही छुपाए हुए थे। वो जानते हैं कि अगर इनके वेपन्स इन ऑफिसर्स के हाथ लग गए तो वो इनको अभी के अभी गोली मार डालेंगे। चेकिंग के दौरान अचानक से वहाँ ऑफिसर्स का चीफ आकर कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम सारी मेडिसिन को खराब कर रहे हो, इन्हें जाने दो। यहाँ पर रिवील होता है कि आदमी एजुकेशन मिनिस्टर के लिए ही काम करता है जिसकी बेटी को आमिर ने दूसरी लड़कियों के साथ किडनैप किया हुआ है और वो इनकी यहाँ से निकलने में मदद कर रहा है। आखिरकार वो अफगानिस्तान आ जाते हैं। इसी दौरान आमिर को दिखाया जाता है। वो एक कैदी लड़की को बुलाकर कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं? तो वो लड़की हाँ में जवाब देती है। फिर आमिर कहता है कि तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा, मैं तुम्हें एक लेटर दूंगा और तुम्हें बस इसको पुलिस स्टेशन में जाकर देना है, इसके बाद तुम आजाद हो। वो लड़की मान जाती है और उस लड़की को गाड़ी में पुलिस स्टेशन के सामने उतारा जाता है और वो अंदर जाकर लेटर पुलिस ऑफिसर्स को दे देती है। जैसे ही वो लेटर खोलते हैं अचानक से गाड़ी में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ अंदर मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ जेक और इसकी टीम को भी इस धमाके का पता चल चुका था। अब सब बहुत हैरान रह जाते हैं। जेक टीम के पास आकर कहती है कि मुझे एक एड्रेस मिला है और वहाँ आमिर के लोग हैं, हमें आज रात ही इन सब पर हमला करना है। अब रात का वक्त है, सब इस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। शुरू में वो एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं ताकि सबका ध्यान इसकी तरफ कर सके। जब सब इसकी तरफ आते हैं तो ये एक एक करके सब पर गोलियां चलाने लगते हैं और बड़ी बेरहमी से इन सबको मार डालते हैं। आमिर के बचे हुए साथियों के पास भी हैवी वेपन्स थे जिसकी वजह से इनका साथी मारा जाता है, लेकिन लड़ाई के दौरान अब गोली ट्रेविस को भी लग जाती है। जेक और इसके साथी इसे जल्दी से उठाकर वहाँ से भागते हैं। रास्ते में जेक को ये भी पता चल जाता है कि अब ट्रेविस की भी मौत हो गई है। आज इन्होंने अपने 2 साथियों को खो दिया था जो कि इनके लिए बहुत दुख की बात थी। अगले दिन जेक उसी चीफ के पास अपनी टीम के साथ जाकर अपने 2 साथियों की मौत का बताती है और इससे मदद मांगती है ताकि इन्हें दफनाया जा सके। चीफ इन्हें जगह बता देता है और वहाँ जाकर ये जमीन खोदने लगते हैं और अपने दोस्तों को दुखी दिल के साथ दफना देते हैं। अब ये दोबारा होटल में है। बेटिया की माँ जेक के पास दोबारा आती है और कहती है कि मैं $10 मिलियन लेकर आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी की जान बचाओ।
जब वो सब पैसे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सारे नोट नकली थे। जेक ने पूछा, ये आप नकली नोट क्यों दे रही हैं? बेटिया की माँ ने कहा, आमिर और इसके लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और इन्हें असली और नकली पैसों का पता नहीं चलेगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम इन पैसों के जरिए बेटिया और दूसरी लड़कियों को आजाद करवा लोगे। दूसरी तरफ आमिर बेटिया के पास आता है और इसकी आंखों में देखकर बोलता है कि मैं आज तक तुम्हारी जैसी बहादुर लड़की से नहीं मिला। तुम मुझसे नहीं डरती, जबकि मैंने बाकी सारी लड़कियों की आंखों में खुद के लिए डर देखा है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इससे पहले कि बेटिया कुछ कहती, आमिर दोबारा बोल पड़ता है, तुम मना नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी बाकी सारी साथियों को जान से मार दूंगा। इसके बाद बेटिया खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ जेक एक कार को अपनी जगह पर आता देखती है और अपनी टीम के साथ गन पकड़े बाहर आ जाती है, लेकिन गाड़ी में अवीना ही थी, जेक की दोस्त। उसे जेक ने ही बुलाया था। अवीना कहती है, आमिर दुनिया में सिर्फ कुछ लोगों की ही इज्जत करता है और डरता भी है। मैंने उस आदमी का पता चला लिया है, लेकिन इसको आर्मी ने कैद किया हुआ है। अगर तुम इसे आजाद कर लो तो आमिर के साथ डील कर सकती हो और वो तुम्हारी तमाम शर्तें भी मान लेगा। ये सुनकर जेक पूछती है कि मुझे एक कॉल करनी है और मुझे तुम्हारा फोन चाहिए, लेकिन अवीना कहती है कि मैं फोन अपने साथ नहीं लाई। जैसे ही अवीना जाती है तो वो प्लान करते हैं आमिर के उसी खास आदमी को ऑफिसर्स के हाथों कैसे आजाद किया जाए। अगले दिन उसी आदमी को वो ऑफिसर्स दूसरी प्रिजन में ले जा रहे होते हैं और ये लोग भी इस बात का पता चला लेते हैं। जेक की टीम इन पर नजर रखे हुए थी, जिसकी वजह से वो इनका पीछा करते हैं। इनकी टीम ग्रेनेड गिराने का इंतजार कर रही थी। अब दूसरी तरफ से एक बस आ रही थी जिसमें मासूम सिविलियंस थे। अब वो ये नहीं चाहते थे कि किसी मासूम की जिंदगी जाए, इसलिए इनमें से एक साथी जानबूझकर अपने बाइक का एक्सीडेंट उस बस से कर देती है और उसका पैर उसी बस में फंस जाता है। दूसरी तरफ जब सब गाड़ियां आने लगीं तो जेक की टीम ने इस पर हमला कर दिया और सब पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जेक ने ग्रेनेड यूज करके पूरे ट्रक को उड़ा दिया और आखिरकार वो आमिर के खास आदमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसी दौरान आमिर के लोगों ने भी इन पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से अब्बास मारा जाता है। लेकिन जेक को एहसास होता है कि इनकी एक साथी मिसिंग है, लेकिन जब वो जाकर देखते हैं कि इनकी साथी का पैर अभी भी बस में फंसा हुआ था और वहाँ जाकर जेक इसे छुड़वाने की कोशिश करती है, जो आसान नहीं था। इसकी साथी कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मुझे यहाँ छोड़ दो, और वहाँ से ये भाग जाते हैं। और आखिर वापस आने पर इन सब ने अब्बास को भी दफना दिया था। अब्बास का भाई अब बहुत दुखी है। जेक इसे तसल्ली देती है। फिर वो टीवी पर एक वीडियो देखते हैं जिसमें इनके साथी को पकड़ लिया गया था और वीडियो में ही इसका गला काट कर उसे मार दिया जाता है। ये देखकर जेक गुस्से में भड़कती हुई उस आमिर के खास आदमी पर जाके गन पॉइंट करती है और फिर अवीना को देखती है जिसके हाथ में फोन था। अवीना वही लड़की थी जिसने पहले कहा था कि मैं फोन नहीं लाई। अब यहाँ से जेक को समझ आ जाती है कि अवीना एक गद्दार है और अब जेक इसके सर पर कुछ मार कर बेहोश कर देती है। फोन चेक करने पर जेक को पता चलता है कि अवीना ने तो पहले ही सब कुछ आमिर और इसके लोगों को हर बात की इंफॉर्मेशन दे दी थी। इसलिए अब जेक समझ जाती है कि वो अपने इस आदमी को लेने आमिर किसी भी वक्त आ सकता है। अब जेक सबको कहती है कि आप यहाँ से जाकर $10 मिलियन यहाँ लाकर रख दें और हम यहाँ अवीना और इस आमिर के खास आदमी को छोड़ देंगे। उम्मीद है आमिर हमारा पीछा नहीं करेगा। इसके बाद वो एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं और आखिर आमिर यहाँ अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है। आमिर अपने खास आदमी और अवीना को देखकर रिलैक्स था और पैसों का भी बैग उठाकर वहाँ से ये लोग चले जाते हैं। जेक और इसकी टीम ये छुप कर सब देख रहे हैं। इसके बाद जेक अवीना के फोन को ट्रैक करने का कहती है और बताती है कि मैंने इसका फोन पैसों के बैग में रख दिया था। कुछ देर में आमिर जमीन के नीचे बने हुए अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। वो अपने खास आदमी को सब बताते हुए कहता है कि आप तैयारी करवाएं, मैं बैरिया से शादी करने वाला हूँ। उसी दौरान जेक और उसकी टीम भी इन्हें ट्रैक करते करते उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ एक गार्ड के अलावा कोई भी नहीं था। सब अंडरग्राउंड आमिर के ठिकाने पर थे। जेक उसी गार्ड को देख लेती है जिसे वो जान से मार डालती है। जेक और उसकी टीम आमिर को खत्म करने का प्लान बना चुके हैं। आखिर इन्हें वो टनल भी मिल जाती है और जेक इसमें सबसे पहले जाती है। वो इन सबको कहती है कि अंदर जाने के बाद वहाँ सब बुर्का पहन लें ताकि दूसरी औरतों में इनका पता न चल सके। वहाँ जो औरतें थीं इन सब ने बुर्के पहने हुए थे। जेक इधर उधर जाने लगती है। अब जेक ये जान गई थी कि तमाम लड़कियों को कहाँ बंदी बनाकर आमिर ने रखा हुआ है। सब कुछ जानने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस में अपने साथियों को पहुंचाती रहती है। जेक अपने साथियों से कहती है
کہ ہر جگہ بم لگا دیے جائیں، جب میں سگنل دوں تو ان کو ایکسپلوڈ کر دینا۔ دوسری طرف بیٹیا کو تیار کر کے عامر کے پاس لایا جاتا ہے اور وہاں عامر کا خاص آدمی بھی تھا، لیکن اپنے ہی آدمی سے عامر کی بحث ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بوڑھا آدمی یہ جان جاتا ہے کہ عامر کا نظریہ کچھ اور ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور عامر اسی آدمی کا گلا کاٹ کر اسے مار ڈالتا ہے۔ اب ہر کوئی ڈر گیا تھا۔ جیک کی ٹیم نے اب ٹنل کے اندر بم بھی لگا دیے تھے۔ اس کے بعد عامر کو اس کا دوسرا آدمی آ کر بتاتا ہے کہ یہ سارا پیسہ نکلی ہے اور اس بیگ میں GPS ٹریکر کے ساتھ فون بھی تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کہ جلدی جاؤ اور جا کر ٹنل میں موجود ہر عورت کا چہرہ دیکھو کہ ان میں امریکنز تو نہیں چھپے ہوئے۔ اب وہ لوگ سارے برقعے والی عورتوں کو لائن میں کھڑا کر کے ان کے نقاب اترواتے ہیں۔ ان میں ایک جیک کی ساتھی بھی تھی۔ جیسے ہی ایک آدمی اس کا نقاب اتارتا ہے تو وہ مسکرانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں کی گیم اب اوور ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہی وہ ایک ریموٹ کا بٹن دبا دیتی ہے جس سے ہر جگہ بہت بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے۔ اس ہلچل میں جیک کی ٹیم عامر کے لوگوں پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اور آلموسٹ سب کو ہی مار ڈالتے ہیں، اور جیک بھی وہیں تھی جو کہ بیٹیا کو کہتی ہے کہ سب کو لے کر اوپر کی طرف بھاگ جاؤ، اور بیٹیا ایسا ہی کرتی ہے اور خود جیک عامر کے پیچھے جاتی ہے اور اسے ڈھونڈ نکالتی ہے۔ عامر اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تم واپس آ گئی، اس بار تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور بہت بری لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں خون کے پیاسے ہوں۔ ایک وقت میں ایسا لگا جیسے عامر نے جیک کو مار ہی ڈالا، لیکن وہ بچ جاتی ہے۔ پھر جیک ایک تلوار اٹھا کر عامر کا بے رحمی سے گلا کاٹ دیتی ہے۔ اب عامر مر چکا ہے۔ تقریباً سارے ہی جیک کے ساتھی ٹنل سے باہر نکل گئے تھے، لیکن اس کی ایک ساتھی بم بلاسٹ کی وجہ سے وہاں ٹریپ ہو گئی تھی۔ اب جیک اپنے ساتھی کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتی، جسے بچانے کے لیے وہ اندر جاتی ہے اور آخرکار اسے بچانے میں کامیاب ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اب وہاں ریسکیو ٹیم بھی پہنچ گئی تھی۔ سب چاپر میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ سب جانے لگتے ہیں۔ جیک عباس کے بھائی کی گاڑی میں ہی بیٹھتی ہے اور وہ واپس لوٹ جاتے ہیں، اور یہاں ان کا ریسکیو مشن پورا ہو جاتا ہے اور کہانی بھی یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔